Good morning students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my English reader class. Hope you all are fine at home. So let's start with a place. We will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we will start with our preparatory assignment 1. Chapter number 1, Rip Van Winkle. We will start from the question answer. Question number 1. Describe the Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was the most popular in his little town. He was very lazy. Rip Van Winkle अपने टाउन का बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर फेमस आदमी था और वो बहुत ज़्यादा लेजी भी था. क्वेश्चन नंबर 2. What did Rip do when his wife told him to sweep the bedroom? रिप वेन विंकल ने क्या किया था जब उसकी पत्नी ने उसे बेडरूम को स्वीप करने को बोला था, क्लीन करने को बोला था. रिप flew their bed cover like a kite when his wife told him to sweep the bedroom. रिप वेन विंकल ने जो अपने बेड कवर थी, चादर थी, उसको काइट की तरह ना उड़ाना शुरू कर दिया बाहर जाके गार्डन में, जब उसकी पत्नी ने उसे बोला कि तुम बेडरूम को साफ कर दो. क्वेश्चन नंबर 3. What did Rip discover when he woke up after his sleep? रिप ने क्या चीज को देखा, उसे क्या मिला जब वो अपनी नींद से उठा था. Rip discovered that he had grown a huge white beard when he woke up after his sleep. रिप ने देखा कि उसके बहुत बड़ी बड़ी वाइट कलर की दाढ़ी आ चुकी है, बियर्ड आ चुकी है जब वो अपनी नींद से उठा था. और वो वाली नींद कौन सी थी? जो सपने में आ रही थी. नंबर 4. Why was Rip sad? रिप सैड क्यों था? Rip was sad because he missed his wife and he was in pain. रिप इसलिए सैड था क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा था और उसे पेन भी हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 5. What did Rip notice as he finally woke up? रिप ने क्या नोटिस किया जब वो फाइनली उठ गया था? As he finally woke up, Rip noticed that his beard and pain had gone and it had all been a dream. जब रिप फाइनली अपनी नींद से उठा था तो उसने देखा कि उसके बियर्ड भी नहीं है और उसको पेन भी नहीं हो रहा और उसे एहसास हुआ कि ये तो उसका एक सपना था. Come to the short question answers. What did Mrs. Winkle tell to Job? Mrs. Winkle ने क्या चोप करने को बोला था? Mrs. Winkle told her husband to go into the woods and cut some firewood. Mrs. Winkle ने अपने हस्बैंड को बोला था कि तुम फॉरेस्ट में जाओ, जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ फायरवुड्स, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आओ. क्वेश्चन नंबर 2. What did Rip decide to do as soon as he got home? रिप ने क्या डिसाइड किया था कि जब वो घर जाएगा तो क्या करेगा? Rip decided that he would get a shave done as soon as he got home. रिप ने डिसाइड किया कि जितना जल्दी वो घर जाएगा वो जाते ही अपनी दाढ़ी को सेव करेगा.
Question number 3. What did someone hand Rip as he was talking? जब रिप बात कर रहा था तो किसी ने उसके हाथ में क्या पकड़ाया था? Answer. Someone handed him a mirror as he was talking. तो किसी ने उसके हाथ में मिरर पकड़ा दिया था जब वो बात कर रहा था. Come to the part C. Read the lines given below and answer the question that follow. अब हमने करना है एक्सट्रैक्ट्स. यहाँ पे एक लाइन दी गई होगी, उनको हमने ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. द लाइन नंबर 1. आई एम प्रीटी श्योर दैट आई डिड नॉट हैव दिस व्हेन आई वेंट टू स्लीप. ये उसने बोला कि मैं इस बात से पक्का हूँ कि जब मैं सोने गया था तो मेरी ये चीज़ नहीं थी. क्वेश्चन है Who said these words and to whom? ये वर्ड्स किसने और किसको बोले थे? Rip said these words to himself. Rip ने ये वर्ड्स अपने आप को बोले थे. Question number 2. Where was the speaker? Speaker कहाँ पे था? Answer. The speaker was in the forest. जो speaker था वो कहाँ पे था? जंगल में था. Speaker कौन है? Rip, जो बात कर रहा था. Question number 3. What did the speaker not have when he went to sleep? Speaker के पास क्या नहीं था जब वो सोने गया था? The speaker did not have a huge white beard when he went to sleep. तो speaker की वो बड़ी बड़ी white कलर की beard नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी जब वो सोने गया था. Line number 2. Yesterday I was the most popular man in town. कल तक मैं इस टाउन का सबसे ज़्यादा फेमस आदमी था. क्वेश्चन नंबर 1. Who said these words and to whom? ये वर्ड्स किसने और किसको बोले थे? आंसर. Rip said these words to the crowd. जब रिप अपनी ड्रीम वाली नींद में उठा था, वो गांव की तरफ गया था और वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया था. उसके टाउन में सब कुछ चेंज हो गया था, तो सारे लोग उसको पहचान नहीं रहे थे. तो उसने तब ये लाइन बोली थी कि कल तक तो मैं इस टाउन का सबसे फेमस आदमी था. क्राउड क्या थी, वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको उसने बोला था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड ही से दीज वर्ड्स? उसने ये वर्ड्स क्यों बोले थे? ही सेड दीज वर्ड्स बिकॉज ही कुडंट बिलीव दैट पीपल डिडंट रिकॉग्नाइज हिम. उसने ये वर्ड्स इसलिए बोले थे क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग उसे पहचान नहीं रहे. इसीलिए तो उसने बोला था कि कल तक तो मैं इस टाउन का सबसे फेमस आदमी था, एक एक बच्चा मुझे जानता था, हर कोई मुझे अच्छे से पहचानता था, लेकिन आज आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3. वॉज ही रियल अ पॉपुलर मैन इन टाउन? क्या सच में वो पॉपुलर मैन था अपने टाउन का? यस, ही वॉज अ पॉपुलर मैन इन टाउन. हाँ जी, वो बहुत फेमस आदमी था अपने टाउन का. Come to the last part. This is a word meaning. Number 1. Find. Find करना होता है किसी चीज़ को ढूंढना. It's a discover. Number 2. Chores. Task है that you do regularly. चोर होता है जो काम हम हर रोज अपने घर पे करते हैं, like chopping, making food, cleaning, dusting, washing clothes, washing dishes. These are the chores. Number 3. Nap is a short sleep that we take for 10 to 15 minutes or for a half an hour also. जो हम ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं उसे लॉन्ग स्लीप बोलते हैं, और जो थोड़े टाइम के लिए ली जाती है लेकिन वो आपको रिलैक्स कर देती है उसे हम नैप बोलते हैं. नंबर 4. इट्स चॉप. चॉप इज कटिंग, किसी चीज़ को काटना, जैसे वेजिटेबल्स काटना, लकड़ियाँ काटना, वो चॉपिंग होता है. नंबर 5. येलिंग. येलिंग होता है शाउटिंग, किसी पे गुस्से में चिल्लाना. नंबर 6. वॉर्न आउट. वॉर्न आउट मीन्स ओल्ड, पुरानी हो चुकी चीज़. नंबर 7. मेयर, हेड ऑफ टाउन, जो हमारे टाउन के हेड होते हैं, जो हमारे टाउन को लीड करते हैं उसे हम मेयर बोलते हैं. एज लाइक द सरपंच इन विलेजेस. सरपंच होते हैं विलेजेस में, वो हेड ऑफ विलेज होते हैं, वो हमारे विलेज को लीड करते हैं ना, ऐसे मेयर होते हैं टाउन्स में. नंबर 8. ग्रोन. साउंड दैट यू मेक इन पेन. जब आपको दर्द होता है, दर्द में आप चीखते हो, चिल्लाते हो, उसे हम ग्रोन बोलते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.